Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll discuss the Hindu analysis dated 14th August 2021. So, let's start today's discussion. The first headline states petrol to cost 3 rupees less in Tamil Nadu. Now, what is this news? It's basically speaks the government of Tamil Nadu has reduced the petrol price by 3 rupees per liter. Now, what this article says or what this article depicts is the DMK government in Tamil Nadu announced that they will cut off the price of petrol. They will cut off the price of petrol by 3 rupees per liter. 3 rupees per liter. The finance minister made this announcement when they were having the revised budget of 2000 year of 2021-22. So when they I think so Friday only they presented the revised budget of 2021-22, in which they stated that they will reduce the price of petrol by 3 rupees. Now if we'll see the result, what will be the result? The result of it will be the state will have to face the loss of 1160 crore. The state has to face the loss of 1160 crores. And if we speak that why then this state did, if they have to face the loss, it has been noticed according to the data that if we speak of the population, there is 263 crores of people who use two wheelers in the state, who use two wheeler in the state. Now being using a two wheeler, it is noticed that they are mainly the working population. We are speaking of the working population. To help them to help them in this amid situation, the government said that we will reduce the price so that it will help the people, working class, and also it will help their economy, not state economy but personal economic individuals economy. From that perspective they have stated we will reduce the price. Second thing, they stated that they will waive the loan of self help group ka there was a loan of amount that was 2756 crore. 2756 crore usko bhi they said that we will waive it. And by doing such initiatives, they said will bring up a mechanism, a proper alternative, so that the people will not suffer of a state. So it is somehow the good initiative the government has taken, but yeah, government has to face a lot of burden because of this initiative. So let's say in the coming years what will be its result, or will it be good for the government or not. Now we'll move to the next news. It states UP attracts huge investment amid pandemic. Now what is this news? It basically speaks that being in a pandemic situation also, UP is a state just because of doing, or we can say because of ease of doing business. Because of ease of doing business, UP in a pandemic situation was able to we can say grant, or was able in a situation where it took, or where it was given 96 investments, which was worth of 66,000 crores, which is received by UP in this pandemic situation. So somehow it is because of Mr. Yogi Nath's we can say initiatives of making the state proper regulatory, or making the state more of performing all the duties very properly. It has been noticed that UP government has undergone a tremendous transformation in this past 4 years. In this past 4 years, it has gone and undergone a large way of transformation. We can say just because of the initiatives that Mr. Yoginath has taken to make the UP state having a different vision. And it was noticed being in this pandemic situation also, till since 2020 April 2020, UP has been able to receive 96 investment, which worth of 66,000 crores, out of which if we speak 17,000 crores are from the foreign investors, and the remaining are from the domestic. So it is not only about the foreign investment 96 may, it also includes the domestic investors also.
foreign investors coming to UP. If you will see the investors who have invested in UP, they are all the developed countries like US, UK, Japan, South Korea, France, Germany. Such countries have came and investment invested in UP. We can say it is possible only because of the proper laws and regulations, the proper power supply, the proper we can say attractive features, or the industries that are growing very flourishing in a very good way because of a friendly nature. So that are some of reason why it has attracted the foreign investor on such large scale. The success of the state attracting the investors in the various states have also do lots of doing with the infrastructure. And second thing is the ease of doing business. If we say ease of doing business, it was noticed there was a large number of population who are working under ease of doing business, and UP is also flourishing. One of the reason is because of this ease of doing business also. Second thing that we should यहाँ पे consider is the UPSIDA. Now, what is UPSIDA? So, that is UP State Industrial Development Authority. So, it was noticed under the UP State Industrial Development Authority, there were 500 industrialists who acquired land under this UPSIDA, which is also we can say a positive aspect. So, under this UPSIDA, there were many people who were investing, and we can say buying the plots or a area for the industrial perspective. It was noticed that there were if we see this UPSIDA area or the plots, so it has been spread in 51 districts. It is spread in the 51 districts, and it is spread in 51 districts, and the factors, if we say, it estimates of 11,500 crore. The estimation of this UPSIDA, if its investments are done or the plots are done, so it is worth of 11,500 crores. Most of this are the 1,000 industrialists have acquired the plot through the pandemic situation only. So being in the pandemic situation also, UP is able to have able to practice or able to work its economy in a such a good way. Second thing, if you will see here, there were many investors who were from India only, but we can say investors from Indian origin. So there were total 32 foreign investments. There were total 32 foreign investments who invested in India and had in Indian origin. So if we see the investment done by this 32 investors, so it worth of 1,045 crore. The investment done by the people having foreign investment foreign investors having an Indian origin, the worth is 1,045 crore during this pandemic situation only. So all these proposals are related to defense, information, technology, agriculture, and many more other infrastructures or sectors. So it can be recalled that state government has set up a project that will have a monetary unit over the solicitous investments from investors to foreign person. The unit is making efforts to identify more of the investors having foreign investing, or we can say UP has this motive of searching or finding the peoples who are doing foreign investment but are having a Indian origin, because economically that will also benefit our economy having the Indian origin. So from that sense, the UP is attracting a large amount of investment. The reasons, we can say, one of the reason is the ease of doing business. Second thing, we can say because of having a proper law, a proper regulation, industrial friendly policy, having governmental supports. Then we can say because of having this plots, that is UPSIDA. So all these things are making UP a very developed state. Let's hope so aage we see such good news in respect to other states also. Okay, now we'll move to the next news. The next news states Assam Assembly passes cow protection bill. Now cow protection bill के बारे में अगर हम बात करें, सो आसाम ने रिसेंटली एक बिल पास किया है स्टेटिंग आसाम कैटल प्रेजर्वेशन बिल ऑफ 2021.
ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस इट रेगुलेट्स द कंजम्पशन, द स्लॉटरिंग और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स. ठीक है, which was passed this Friday. So our CM of Assam, Mr. Himanta Biswa Sarma, tabled this on July 12. So this bill was brought on July 12th and it was passed this Friday. Now this, agar if we speak of this new regulation, it is same of the regulation that was passed in 1950. It was same of the regulation that was passed in 1950. 1950 एक्ट के बारे में बात करें तो 1950 according to this 1950 act it was forbidden to sell or to purchase the beef in some places, and because it was only permitted to some places. In every places you can't just sell or purchase the beef if we speak of 1950 act. ठीक है. सो इफ वी द सेल, और वी कैन से इट अश्योर्स द परमिशन टू सेल द बीफ इज नॉट ग्रांटेड. वन ऑफ द वी कैन से the provisions or the clause of this bill is it is not allowed to sell the beef or slaughtering of the beef in our regions where there are people from the religions of Hindu, Jain, Sikh or Vaishnavites or people who are following the Vaishnav monastery. ठीक है. इन सच एरिया विद इन, इफ देर इज़ अ एरिया तो उसके 500 किलोमीटर के रेडियस के बाहर यू कैन सेल और डू दिस थिंग. उसके अंडर यू आर नॉट अलाउड, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू डू सच थिंग. नाउ सेकेंड थिंग, अगर वी स्पीक, दिस लॉ विल प्रोहिबिट द पर्सन फ्रॉम स्लॉटरिंग. ठीक है. द पर्सन हु डजंट हैज़ अ प्रॉपर सर्टिफिकेट, अ प्रॉपर नेसेसरी सर्टिफिकेट विच विल रजिस्टर्ड द पर्सन एज अ वेटरनरी ऑफिसर, वो पर्सन को नहीं अलाउ होगा बीफ को स्लॉटर करने में या कुछ भी करने में. अगर उस पर्सन के पास ये प्रॉपर सर्टिफिकेट है देन ओनली दैट पर्सन को इज़ द राइट कि वो कर सकता है. वो भी रीजन्स को ध्यान देके कि आप कौन से एरिया में कर रहे हो. ठीक है. द वेटरनरी ऑफिसर विल इशू अ सर्टिफिकेट ओनली इफ ही और शी इज of the opinion that bovine not being a cow is over 14 years of age. If the cow is less than 14 years of age, you can't slaughter that thing or you can't slaughter that being. ठीक है. If the species, or if we can say if the cattle is more than 14 years, then it is allowed. उसमें भी एक clause है. The clause says the cow or the calf may be slaughtered only if it is permanently incapacitated. इसका मतलब क्या है कि इफ़ नाउ इट इज़ ऑफ नो यूज़. ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ रीच टू अ एज जब वहाँ पे उसका कोई प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकता, देन ओनली यू कैन यूज़ सच काउ फॉर काउ स्लॉटरिंग. ठीक है. तो ये एक क्लॉज है, उसमें अगर आप कर भी रहे हो तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है. उसमें भी देयर इज़ एन इम्प्रीजमेंट और वी कैन से द फाइन. अगर इट इज़ नोटिस कि अगर कोई पर्सन ऐसा काम कर रहा है, पहली बात वो पर्सन को जेल हो सकती है फॉर नॉट लेस देन 3 years. ठीक है. एंड अगर फाइन अमाउंट देखें तो इट इज़ 3 लाख to 5 लाख तक का अमाउंट. ठीक है. सो ये एक उस क्लॉज बने हैं अंडर द आर्टिकल. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द काउ स्लॉटरिंग लॉ दैट इज़ मेड इन इंडिया. अगर पुराने हम देखें तो पुराने भी कुछ लॉज बने थे, जैसे 2005 में बना था काउ स्लॉटर को लेके. देन अगर मैं देखूँ 2017 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया था रिलेटेड टू दिस स्लॉटरिंग ऑफ काउस. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी अगर हम बात करें अबाउट दिस काउ स्लॉटरिंग, इंडिया को कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लार्ज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्टिंग दी बीफ टू दी अदर कंट्रीज़. अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो वर्ल्ड का 20% जो बीफ एक्सपोर्ट है वो इंडिया की तरफ से होता है. तो 20% वर्ल्ड के हिसाब से आप समझ लो कितना बड़ा अमाउंट है. एज पर दी एग्जिस्टिंग मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंडिया जो है मीट के नाम पर आपको काओ, ऑक्सन, बफेलो ये सब की मीट देती है इन द नेम ऑफ वी कैन से स्लॉटरिंग ऑफ बीफ. ठीक है. नाउ बोन ऑफ दिस मीट, दी कैरकास, दी हाफ कैरकास, ये सब जो है ये सब प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट करने को.
ठीक है, आप अगर किसी काव का, किसी बीफ का स्लॉटरिंग भी कर रहे हो तो उसका ये सब पार्ट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग। ओनली द बोनलेस मीट ऑफ बफेलो, मीट ऑफ गोट, शिप, बर्ड्स, ये सब परमिट है एक्सपोर्ट करने के लिए। सो कहीं ना कहीं इंडिया का इकोनॉमी भी, इंडिया के इकोनॉमी में बीफ, या फिर हम बोल सकते हैं बीफ एक्सपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अभी भी आसाम ने ये चीज़ नहीं किया है कि इट इज़ फुल्ली स्टॉपिंग इट, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर बनाए हैं ताकि दूसरों को भी इसमें तकलीफ ना हो। द बिल सिक्स टू रिप्लेस द ओल्डर बिल ऑफ 1950 एंड इट विल अलाउ द काउ जिसकी एज 14 साल के नीचे, मतलब 14 साल से ज़्यादा है, सॉरी, जिसकी एज 14 साल से ज़्यादा है और अब जो है उसका आगे कुछ प्रोडक्टिविटी और नहीं हो सकता, ठीक है, या उसकी कोई और ब्रीडिंग नहीं हो सकती या कुछ नहीं हो सकता, देन ओनली यू कैन यूज़ सच काउ फॉर स्लॉटरिंग। ठीक है, सेल ऑफ बिल इज़ अलाउड बट 5 किलोमीटर रेडियस का ध्यान देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कोई मोनेस्ट्रीज है, सतराज हैं, या हिंदू हिंदू या फिर या हमारे सिख, जैन, ऐसे कुछ कम्युनिटी रहती है, तो उस कम्युनिटी के 5 किलोमीटर रेडियस के बाहर ओनली यू कैन प्रैक्टिस सच बिल। सो आई होप सो ये बिल आपको क्लियर हुआ होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट बिल। द नेक्स्ट आर्टिकल सेज गंगा इन स्पेट इन बिहार। अब इसमें हुआ क्या है, तो ये चीज़ नोटिस किया गया है कि बिहार में जो गंगा का ट्रिब्यूटरीज है या बेसिन है, बहुत हद तक इट इज़ बिन डिजॉल्व, और कहीं ना कहीं ये चांसेस है, ये वार्निंग दिया जा रहा है कि वहाँ पे कंटिन्यूस या फिर फ्लडिंग्स हो सकते हैं। द स्वोलन गंगा many places from Buxar to Kahalgaon, which is in Bhagalpur district of Bihar, on Friday threatened to be flood the state of Patna. Thousands of people have been shifted from the flood area to relieve the camps set up by the government. As many as 14 diaras, that is the riverines, 14 riverines area from the Maner to Mokama have been completely submerged, forcing people to migrate to a safer place. The capital states have been flooded. Water has been flowing above the danger mark, threatening the enter Patna. The water level is very high. If we see the highest is at the Dihang, which is the Gandhi Ghat. Dihang. Gandak, Kosi, Sone, Kamla, Bagmati rivers have been showing a rise trend in the different part of the state. अब ये न्यूज़ अगर हम देखें तो ये न्यूज़ एक आर्टिकल है, एक वार्निंग आर्टिकल है कि ऐसा ऐसा हो रहा है एंड कुछ प्रॉपर इनिशिएटिव्स लेने चाहिए हमारे लिए। फ्रॉम बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इस रिवर, मतलब गंगा रिवर हुआ, तो गंगा रिवर के रिजर्व, मतलब सारे ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ हैं, कौन से मेन हैं। इफ़ वी स्पीक ऑफ बिहार, बिकॉज आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू बिहार, कुछ के नाम यहाँ पे दिए थे जैसे गंडक, कोसी, सोने, कमला, बागमती, ऐसे कुछ रिवर्स हैं या फिर हम ऐसे कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो बिहार में मेजर सोर्स ऑफ वाटर बनते हैं। ठीक है, विल सी फॉरवर्ड कि इनके क्या क्या हैं। नाउ इफ़ यू विल सी दिस ब्लू इज़ द रिवराइंस ऑफ गंगा। ठीक है, दिस ब्लू लाइन्स इफ़ यू विल सी इट इज़ द रिवराइंस और वी कैन से ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। If we speak of Bihar का location, it is the eastern part of the country which is bordered by Himalaya from the north and plateaus from the south. इस तरफ से हिमालयंस है सिंटेकल बैंड के साथ, एंड इस तरह के साथ हमारा प्लाटो है। डेक्कन प्लाटो की बात अगर करूँ तो सदर्न की तरफ हमारा प्लाटो है जहाँ से पूरी रिवर, ये सब हमारे रिवर्स फ्लो होते हैं। Bihar is very rich in water resource both from the ground as well as surface water resource. Now अगर हम रिवर्स की बात करें तो ड्रेनेज पैटर्न अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे गंगा का ड्रेनेज पैटर्न फॉलो होता है या फिर गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का ऊपर की तरफ से जाता है, नॉट प्रॉपरली ईयर। ठीक है, इन इट इज़ द मेन रिवर ऑफ बिहार दैट एंटर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ चौसा विच इज़ टू द बाउंड्री ऑफ भोजपुर एंड सत्र। यहाँ पे चौसा है जहाँ से वो एंटर करता है। ठीक है, सो यहाँ से वो एंटर करता है फ्रॉम चौसा, बिहार की अगर हम बात करें। दूसरी चीज़ अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो जैसे कुछ ट्रिब्यूटरीज बताए थे, गंडक हो गए, फिर भगमती, देन कोसी, सोने, काली, कमरनसा, ठीक है, पुनपुन, ये कुछ हम बोल सकते हैं इसके
ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के। अगर हम बात करें इधर वन ऑफ द, हम बोल सकते हैं वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से बिहार भी फेमस है, इज़ अबाउट दी महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु अगर मैं देखूँ तो वो हमारा नदन बिहार और सदर्न बिहार, रेस्ट ऑफ द बिहार को कनेक्ट करता है बाय द नेशनल हाईवे ऑफ NH-19। NH-19 की वजह से हम गांधी सेतु इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द नदर्न बिहार फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिहार। ठीक है, नाउ वी स्पीक ऑफ सम ऑफ इट्स रिवर्स और वी कैन से ट्रिब्यूटरीज। एक जैसे अगर मैं बात करूँ गंडक की, गंडक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ धौलागिरी इन द तिब्बत रीजन। धौलागिरी यहाँ पर है, यहाँ से हमारा गंडक का फ्लो आता है। यस, ये वाला एरिया हमारा नेपाल है, वहाँ से सॉरी हाँ नेपाल एंड तिब्बत की तरफ से धौलागिरी से उसका फ्लो आता है इंडिया में। ठीक है, एंड इंडिया की तरफ अगर देखूँ, नेपाल की तरफ से देयर इज़ अ नेम त्रिवेणी और तिब्बत की तरफ से धौलागिरी, यहाँ से ओरिजिन है गंडक का। इट फ्लोट्स साउथ टू अ डायरेक्शन एंड फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार। यूपी एंड बिहार के बीच में ये एक बाउंड्री बनाता है। इट्स ड्रेन इन दी वेस्टर्न चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सरन, वैशाली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो गंडक इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर टू मेनी ऑफ द प्लेसेस। मुजफ्फरपुर यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ के रीजन्स का जो वाटर देखेंगे तो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गंडक, सो इट फ्लो टूवर्ड्स दी साउथ साइड। नेक्स्ट अगर मैं उसकी और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, गंडक रिवर के ऊपर एक कैनल बना है जिस कैनल का नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी कैनल बना है विच इज़ वी कैन सी ओवर गंडक रिवर। दूसरी अगर मैं देखूँ उसी में कुछ बाइफिकेशन है गंडक रिवर की, एक बूढ़ी गंडक भी बोला जाता है जो कि हमारा चंपारण और बेगूसराय समस्तीपुर के तरफ बहता है। ठीक है, सो उसके बाद आता है बागमती। बागमती की बात करूँ तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द शिवपुरी रेंजेस ऑफ हिल्स इन नेपाल। ठीक है, द बागमती जो है वो नेपाल के ओरिजिन से एंटर करता है इंडिया में। इट फ्लोज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। सो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर का मेन वो सोर्स वाटर जो है वो बागमती देता है। ठीक है, इट इज़ अ पेरिनियल रिवर ऑफ पेरिनियल रिवर ऑफ बिहार एंड इट हैज़ इट्स टेरिटरीज लाइक लखबेकिया एंड लखहेंदे, ये सब कुछ टेरिटरीज हैं बागमती के। इट मीट्स कोशी रिवर इन बदलाघाट में वो कोशी रिवर से मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है कमला। कमला इज़ ऑल्सो वी कैन से गंगा का ट्रिब्यूटरी। कमला की अगर मैं बात करूँ तो ये भी नेपाल से एंटर होता है और इन बिहार की बात करूँ तो जयनगर, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के तरफ आता है दिस कमला रिवर। फिर आता है महानंदा, तो इसका ओरिजिन सिक्किम में है। ठीक है, और ये अगर बिहार की बात करूँ तो बिहार में पूर्णिया के तरफ से एंटर करता है। इट जॉइंस दी गंगा इन नवाबगंज विच इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। सन की बात करूँ तो सन हमारा ओरिजिनेट होता है अमरकंटक हिल्स में जो कि मध्य प्रदेश है एंड इट जॉइंस गंगा एट मानेर। सो ये सब कुछ हमारे वी कैन से ट्रिब्यूटरीज है गंगा के। कोसी रिवर की बात करूँ तो एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, किसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन है विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बिहार, तो वो कोसी होता है। क्यों सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं? क्योंकि बिहार में वन ऑफ द टाइम जो वंस इन अ ईयर जो फ्लडिंग होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ कोसी रिवर। तो इट एक्चुअली स्प्रेड्स डिजास्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोसी रिवर को हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। कोसी रिवर का दूसरा नाम अगर हम देखें तो सप्तकोशी भी होता है बिकॉज इसके 7 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिसकी वजह से इसको हम सप्तकोशी भी बुलाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ पुनपुन। पुनपुन की अगर मैं बात करूँ तो इट ओरिजिनेट्स इन हजारीबंज। तो ये हजारीबंज जो है ये एक प्लाटो है जो कि गंगा रिवर को ज्वाइन करता है। इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम है दौड़दा, बुताई, मदर, मोहर, ये कुछ उसके टेरिटरीज हैं। ठीक है, सो ये कुछ हमने पढ़ा अबाउट दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। हमने बिहार का थोड़ा लोकेशन देखा, बिहार की कनेक्टिविटी देखी, उस रिवर का ओरिजिन कहाँ से है और कौन से स्टेट्स को वो प्रोवाइड करता है, हमने कुछ उसके बारे में जाना। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। The next news states Taliban gains complicate India's
ओपिनियन। ठीक है ना, व्हाट इज़ दिस न्यूज़, ये न्यूज़ अचानक से क्यों आया है, ये क्या है। तो हमने कुछ टाइम से देखा तालिबान के लिए अगर मैं बात करूं, तालिबान में अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल बढ़ते जा रहा है। अफ़गानिस्तान की मेजर सिटीज़ को तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। यूएस एंड यूके मिलिट्री वालों ने बोला है कि जितना जल्दी आप इस एरिया को खाली कर सकते हो खाली कर दो। सेम चीज़ इंडिया ने भी अपनी इनिशिएटिव उठाई, जितने भी इंडियन ओरिजिन के वहाँ पे हैं उनको स्पेशल फ़्लाइट फैसिलिटीज़ देकर दे ट्राइड कि यहाँ से वो लोग चले जाए। ठीक है, बट अगर हम अभी आज की सिचुएशन देखें, कल के न्यूज़ में हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान ने ये चीज़ इनिशिएटिव लिया कि ठीक है, विल शेयर पावर, एटलीस्ट यू स्टॉप दिस डिस्ट्रक्शन दैट इज़ हैपनिंग। काबुल को मीडिएटर बनाकर उन्होंने बोला कि प्लीज़ बीइंग अ मीडिएटर उनसे बात करते हैं एंड विल स्टॉप दिस डिस्ट्रक्शन दैट इज़ हैपनिंग बाय हैविंग अ प्रॉपर नेगोशिएशन, कि ठीक है विल शेयर द पावर। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चीज़ क्यों हुआ है, ये चीज़ इसके लिए हुआ है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंडिया का क्या रोल है या इंडिया क्या चीज़ फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें हम चीज़ क्या देखते हैं, पहला कंसर्न जो है, जो जितने भी डिप्लोमैट्स थे, पर्सनल्स थे, सिटीजन्स थे जो कि अफ़गानिस्तान में रहते थे, उनको जो है खाली करवा दिया गया बाय द यूएस ट्रुप्स। ठीक है, खाली करवा दिया गया, बट देन ऑल्सो ये चीज़ देखा जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी हैं। अब इंडिया की कंसर्न क्यों बनता है, जैसे कल के न्यूज़ में हमने देखा कंदर हुआ, काबुल एमएनसी हुई, ये सब पे अभी भी कुछ कुछ लोग हैं। और वहाँ के हम लोग के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का ये बोला जा रहा है कि देर आर मोर देन 388 मेंबर्स ऑफ हिंदू एंड सिख कम्युनिटी टू रिटर्न टू इंडिया। अभी भी इतनी मेजर कम्युनिटी है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जिनको इंडिया में वापस लाना बाकी है। अब अगर हम हमारे यहाँ पे बात करें अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वहाँ पर जो लोग हैं उनको क्या आप इंडिया में जगह दे सकते हो, क्योंकि हम अगर ये देखते हैं सीए के हिसाब से तो एक प्रॉपर एक क्लॉज है कि आपको इतना साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, देन ओनली यू आर द ओरिजिन। ठीक है, अगर आप अफ़गानिस्तान में हो, कुछ कुछ जगह पर हो, तो वहाँ पे से आना थोड़ा मुश्किल है। तो क्वेश्चन यही उठता है, इंडियाज़ कॉम्प्लिकेटेड ओपिनियन इसके लिए बोला है कि बीइंग इन सच सिचुएशन इंडिया का जो एक्ट है क्या वो सूट करेगा, क्योंकि इंडिया दोनों तरफ से फंसा है, एक तरफ से बिकॉज ऑफ सीएए जो उनको मानना पड़ेगा, दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो इतना बड़ा कम्युनिटी इंडिया का अभी भी वहाँ पे फंसा हुआ है। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब इंडिया करेगा क्या विद द तालिबान इन पावर इन मच ऑफ द अफगानिस्तान से ज़्यादा तालिबान के हाथ में अब पावर आ चुका है। क्वेश्चन ये उठता है कि लश्कर ए तैयबा हुआ, जैश ए मोहम्मद हुआ, ये सब जो हैं जो स्पेस अगर ले लेंगे तो इंडिया को या इंडिया के लोगों का क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन या दूसरा कंसर्न यहाँ पे ये उठता है, तालिबान बीइंग इन पावर, पाकिस्तान मिलिट्री को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावर्स आ चुके हैं, या पाकिस्तान मिलिट्री को एक तरह से हम कंट्रोल बोल सकते हैं, वो अपना कंट्रोल जताने लगे हैं जस्ट बिकॉज तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है अफ़गानिस्तान पे। क्योंकि हमको भी पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है, इसका सोर्स जो भी है, इकोनॉमिक सोर्स, मिलिट्री वेपन सोर्स जो भी है, वो सब कहीं ना कहीं तालिबान उनको प्रोवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को एक अपर हैंड मिल चुका है बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन अफ़गानिस्तान। ठीक है, वो भी एक कंसर्न उठता है इंडिया के लिए, क्योंकि if we see Pakistan and intelligence agencies in influence outcome for the country which will mandate the small role for Indian development and infrastructures to work for its goodwill। अभी इसके एडिशन में अगर मैं बात करूँ तो इसके एडिशन में क्या चीज़ नोटिस किया जा रहा है कि तालिबान ने क्या, बिकॉज ऑफ इट्स मेजर पावर, तालिबान ने क्या बोला कि हम सारा रूट्स जो है हमारा सेंट्रल एशिया की तरफ के जो भी जिनको भी रूट जाना होगा तो वो हमारे पाकिस्तान के थ्रू जाएगा, जो वैसे भी कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, और जो एक चाबहार पोर्ट था जो कि अभी बन रहा है, तो उनका ये बोलना है कि यहाँ से जाने वाला है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है एक तरह से एक रैडिकल थिंग हम बोल सकते हैं, पर्सपेक्टिव, एक पैन इस्लामिक टेरर बन जा रहा है फॉर इंडियाज़ नेबर। ठीक है, बीइंग अ इंडियाज़ नेबर, ये एक टेरर है फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे अपोनेंट की बात करें, अपोनेंट पार्टी की बात करें तो उनके हाथ में एक अपर हैंड, उनको पावर दिया जा रहा है। सो उसके पर्सपेक्टिव से इंडिया ने बोला कि वी विल हैव 4 ऑप्शंस। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये 4 ऑप्शंस है क्या। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला है कि दे विल स्टिक टू इट्स प्रिंसिपल फॉर बैकिंग ओनली अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन काबुल एंड प्रोवाइडिंग द पॉलिटिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट।
क्या बोला कि हम ये चीज़ पर ध्यान ही नहीं देंगे कि तालिबान का कंट्रोल कितना है या क्या है। हम अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशन बनाएंगे, दैट विल बी द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग रिलेशन विद अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, विल हैव अ प्रॉपर ह्यूमन सपोर्ट, प्रॉपर हमारा जो भी डेलीगेशंस होते हैं, जो भी होता है हमारे फंक्शंस, वो सब हम रखेंगे, बट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनली अफ़गानिस्तान कंट्रोल, ओनली अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ओनली। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सेकंड उनका बोलता है कि अगर हम सप्लाई की बात करें, मिलिट्री सप्लाई की, जो भी हमारा एम्यूनेशंस है, एयर पावर्स है, ठीक है, ये सब जो है पॉसिबल होगा तो हम ईरानियन रूट से लेके आएंगे, क्योंकि ये रूट पे तो अगर हम देखें तो ये रूट पे तो अभी उन लोग ने कंट्रोल कर लिया है। हमारा छाबहार हो गया, कराची हो गया, ग्वादर हो गया, तो उन्होंने बोला हमें जो भी प्रोडक्ट्स लाना होगा विल ब्रिंग इट फ्रॉम द ईरानियन रूट, ताकि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज सेकेंड सोल्यूशंस वी कैन से। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, थर्ड बोलते हैं दे विल एक्सेलरेट द कॉन्टैक्ट विद द तालिबान। However, this is unlikely to give India much leverage given to Pakistan facilities. Obviously, India चाहेगा कि तालिबान के साथ भी नॉट हैविंग अ वेरी क्लोज रिलेशन, बट म्यूचुअल रिलेशन के साथ रहे। बट ये भी एक डर है कि पाकिस्तान का अगर उसमें रहेगा, पाकिस्तान उस पिक्चर में रहेगा, तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक देखना ही पड़ेगा। तो वो एक थर्ड इनिशिएटिव है कि हम उनके साथ भी एक म्यूचुअल रिलेशन रखेंगे। फोर्थ, फाइनली अगर मैं बात करूँ फोर्थ, तो इंडिया कुड सिंपली वेट एंड वॉच अंटिल द केओस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रिवील्स द विनिंग साइड, क्योंकि अभी तक तो नेगोशिएशन चल ही रहा है ना कि कौन सा पार्ट लेगा, ठीक है। तो उनका ये बोलना है कि विल वेट एंड वॉच क्या होने वाला है, किसके हाथ में पावर जाता है, ठीक है। दिस ऑप्शन विल सीम द एक्सपीडेंट, बट इट ऑल्सो डिनाइज इंडियाज रेलिवेंस एट द हाई टेबल वेयर अफगानिस्तान फ्यूचर इज बिन डिस्कस स्पेशली विद ट्रोकिया प्लस ग्रुपिंग। यूएस, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये लोग की मीट है जिसमें ये लोग अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। इंडिया उसका मेंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए वो चीज़ भी एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन बन रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने ये 4 सॉल्यूशंस रखा है कि हम ये 4 सॉल्यूशंस देखते हैं, विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट, एंड लेट्स होप आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है या किसके हाथ में पावर आने वाली है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ न्यूज़। अगर आपको आज का न्यूज़ पसंद आया तो डू लाइक and subscribe the channel. Thank you so much.